Okay, let them join and then we will begin our session. Okay, my dear children, I hope that you are good and feeling great. Let's give them 1 minute more. There are few participants who are still joining. Okay, my dear children, as you know, we have completed our syllabus of unit 3rd. And now from Monday, we are going to revise it. So tomorrow morning, I'm going to send you the question answers of the last chapter, the unicorns of Kabalistan. Okay, and book work too. And you have requested me to resend the format of letter writing. I will send it to you, and message writing also. Okay. Okay. So, Advita want to say something. Yes, dear. Ma'am, Yes. I raise hand for reading. Okay. We have not yet started, my dear child. Okay. Now, everybody kindly sit straight. Sit straight. Hands on your lap. Very good. And if you are able to, kindly you can switch on your videos. If there is no network issue, you just switch on your video. And my dear children, I have sent to you, some of you don't have the Aadhaar card. Kindly call me up and I will help you out. And if you have with you and your name is not in the list, kindly send me on my personal number your Aadhaar card number, your name and your class. Some of you have sent. Okay, some of you have sent to me and I have seen it. Thank you for responding so quickly and for following my instructions. I'm really very happy with the class because you just read and reply immediately. Okay, and I hope like this you are doing your pending work also on time, your homework also on time. I'm really very happy with the class. God bless you all. Now everybody sit straight, hands on your lap. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Breathe in all the negative vibrations from the environment. Breathe out all the negative thoughts that hinders you, all the negative vibrations that are within you, and breathe in all the positive energy from the environment. And try to concentrate whatever we are going to discuss today. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. While breathing in and breathing out, thank you, God, for the wonderful life. And thank you, God, for giving you wonderful parents and for giving you wonderful school as you enjoy your classes and your school. And pray to God that please create everything normal like we used to live our life previously without any hindrances. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Okay, my dear children. Ruhani, you have raised your hand. Yes, Ruhani? Ma'am, for reading only. Okay, अभी नहीं बच्चे रुक जाओ. Okay, ma'am. Okay. Breathe in, breathe out. And now open your eyes. A very good afternoon to everyone, my dear child. Today, to every child of my class, and today we are going to read a new poem. You know, no, the poem is not called poem, it is called poem. Okay? Yes, Now ma'am. today we are going to read one poem. The name of the poem is Sea Fever. Okay. John Masefield is the writer of this poem. John Masefield was an English poet and a writer, and he has written several novels, especially for children's. The Midnight Folk and the Book of Delights were his famous novels that are meant for the children's, and he also had written several poems,
and among them the everlasting mercy and sea fever are widely read. That means, yes, I have left one chapter because after poem we will read the chapter. Okay? Yes, I know that. Yes, I know Japanese that last time you don't get a chance to read. Today I will give you definitely. Okay. This poem is about the fever. But fever, कौन सा fever? Normal fever नहीं. Fever that is related to adventure. Some of you love riding, some of you love trekking, some of you want to go somewhere, uh, somewhere near the sea coasts and enjoy the soothing sun and the soothing moon of that area. तो हर एक इंसान की अलग अलग एडवेंचर होती है और हर एक इंसान की अलग अलग चॉइसेस होती हैं. इन द सेम वे, जैसे एक वो ये दिस इज अ फैक्ट दैट इन द सेम वे जैसे एक टीचर को टीचिंग उसका एक पोजीशन होता है. ओके, we teach because we are not taking it as for granted. We teach because we love teaching. I teach because I love to teach. तो वो मेरे में एक पोजीशन है, वो मेरे में एक एक क्या कहते हैं उसे हिंदी में, आई डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड, कि वो एक मेरे में एक क्या बोलते हैं इसे, कुछ अच्छा सा बोलते हैं, अभी अभी मेरे को याद आया था बट इट जस्ट स्किप फ्रॉम माय माइंड. तो कुछ जैसे कुछ करने की चाहत होती है ना, जब हम व्हेन वी डू जज्बा, यस थैंक यू. ओके, तो जब आप किसी चीज का जज्बा होता है ना, देन यू एंजॉय डूइंग इट. जैसे किसी को पेंटिंग का इतना नशा होता है कि वो सोने के टाइम भी सोचते हैं कि सुबह अगर इस पेंटिंग को मैं ऐसे वाला कलर दूंगी तो क्या होगा, अगर कुछ और चेंज लाऊंगी तो वो कैसे लगेगी. इन द सेम वे हर इंसान किसी ना किसी चीज से जुड़ा होता है और जो किसी चीज से बहुत दिल से जुड़ा होता है उसे उसे करने का मजा भी आता है और हमेशा वो मैक्सिमम टाइम उसी चीज के बारे में सोचता भी है. ओके, उसी चीज के बारे में सोचता ही है. जैसे ड्राइवर को अपनी गाड़ी से बहुत प्यार होता है. ओके, एंड जैसे एक डॉक्टर को अपने स्टेथोस्कोप से और अपने डॉक्टर वाइट कोट से बहुत लगाव होता है. एक लॉयर को अपने वाइट ब्लैक कोट से बहुत अटैचमेंट होती है और अपने डॉक्यूमेंटेशन से. इन द सेम वे इन द सेम वे एक टीचर को अपनी बुक से, पेंसिल से, अपने बच्चों से हद से भी ज्यादा अटैचमेंट होती है. दैट मीन्स वट एवर वन डू यू गेट अटैच टू इट. तो ऐसे ही ये एक कहानी एक सेलर की है जो सेल करता है समुंदर में और उसे जिसमें वो सेल करता है उसे उससे बहुत प्यार है और वो हमेशा उसे ऐसा लगता रहता है कि समुंदर उसे पुकार रहा है और बोल रहा है, आओ आओ से आप अपनी शिप पे बैठ के मेरे पानी में खो जाओ और अपनी एडवेंचरस जर्नी को बिगिन करो. और वो उसको, जो ये सेलर है, anything hardly matters to him. He also considered a bad storm or a very high tides in a positive manner. उससे वो exciting and delighted लगती हैं. उसे बहुत अच्छा लगता है कि जब हाई टाइड्स हों या समुंदर में हवाएं हों, हवाओं से समुंदर का पानी लहराता है, तो वो हर चीज को, समुंदर से जुड़ी हर चीज को पॉजिटिव वे में लेता है, नेगेटिव वे में नहीं लेता. क्यों? क्योंकि वो उस चीज से अटैच्ड है. उसे सेलिंग करना बहुत अच्छा लगता है और वो एक सेलर होने के नाते उसे शिप और पानी से अटैचमेंट है क्योंकि वो उसका प्रोफेशन है और वो उसका पोजेशन है. ओके, बहुत पोजेसिव है वो उन चीजों को लेके. तो ये एक फीवर है, वो फीवर जहाँ पे एक सेलर को हमेशा लगता है कि उसको समुंदर पुकार रहा है और वो ऐसी पुकार है कि वो उससे दूर नहीं भाग सकता. वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है और उसे हमेशा लगता है कि मैं बस समुंदर में सेल करता रहूं और ऐसे ही लहरों को छूता रहूं और ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी
इस लहरों में समर्पित कर दूं। तो ये वो पोइम है। Listen, my dear children, I want to share one thing with you. Whenever there is something in your book, जो भी लेसन होता है या जो भी पोम होती है या कुछ भी आप पढ़ते हो, वो लाइफ में स्पेशली इन इंग्लिश वो चीज यू कैन रिलेट टू योर लाइफ। ओके, जैसे यहाँ पे सी फीवर है, तो हाउ इट इज रिलेटेड टू our okay how it is related to our life, it is related to our life। क्यों? क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि जब आप किसी चीज को तहे दिल से, अपने दिल से चाहोगे और उसे पाने की आशा रखोगे, तो वो आपको, चाहे उसे पाने में आपको कितने अप एंड डाउन्स भी फेस करने पड़े, बट आप उसे पॉजिटिवली लोगे और हमेशा मंजिल तक पहुंचोगे। ये इस सी फीवर के पोइम का जिस्ट है, जो आप अपनी लैब के साथ रिलेट कर सकते हो। आई थिंक दैट माई वर्ड्स आर क्लियर टू यू। और आप इतने छोटे नहीं हो कि छोटी छोटी चीज़ों का मीनिंग बताया जाए आपको। आप खुद भी समझदार हो, आपको पता है कि मैम के कौन सी चीज़ क्या बोल रहे हैं। ओके, देन व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट कि ये जो सी फीवर है, ये सी फीवर आपको अभी, I am explaining something very interesting with you, my dear children, but you are busy who will get the chance to read. I get really very annoyed with such kind of activities. When I'm explaining something with you, that means it is for you only. मैं ऐसे तो नहीं बोल रही हूँ ना, मतलब ऐसे बैठ से बात तो नहीं कर रही हूँ ना कि जो आपके मतलब की बात नहीं है। इस टाइम में से वो बोल रही हूँ जो आपके मतलब के लिए है। तो प्लीज काइंडली कॉन्सेंट्रेट, otherwise from next time nobody will read। I was saying that जो सी फीवर पोएम है, जो भी पोम आपकी बुक में होती है या लेसन होता है, when it ends up it always teach us a lesson and we can relate everything with ourselves। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं या अगर आपको अपनी वीकनेसेस पे इम्प्रूव करना है, तो ये भूल जाओ कि उसे इम्प्रूव करने में आपको कौन कौन सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। और आपकी लाइफ में इस टाइम डिफिकल्टीज क्या है? जल्दी उठना, 2-3 घंटे बैठ के पढ़ना और स्टेबिलिटी लाना। और जब टीचर पढ़ा रहे हो तो कॉन्सेंट्रेट करके सुनना, घर पे उसी चीज को प्रैक्टिस करना। ये उन बच्चों के लिए डिफिकल्ट है जिनकी रेगुलर रूटीन में ये चीजें नहीं है, बट जिनके रेगुलर रूटीन में ये चीजें हैं, वो बहुत आराम से इन चीजों को कर सकते हैं। तो इन डिफिकल्टीज को, एवरीवन इज नॉट ए स्टार बट एवरीवन कैन बी ए स्टार। तो अपनी मेहनत से जब भी किसी चीज को इम्प्रूव करना चाहो, जब भी किसी चीज पे काम करना चाहो, फॉर एग्जाम्पल योर हैंड राइटिंग इज नॉट गुड या योर मैथ्स इज नॉट गुड, प्रैक्टिस इट एंड show your love towards the subject, automatically that will become your friend। ऐसे ही ये एक मोटिवेशनल पोम है जो हमें बताती है कि जो जो प्रोफेशन है आपका, प्रोफेशन मीन्स जो आप काम कर रहे हो, उसे अगर दिल से करोगे तो वो आपका प्यार बन जाता है। उससे साथ जुड़ी हर चीज आपको अच्छी लगने लगती है, टफ नहीं लगती, डिफिकल्ट नहीं लगती। ओके, विद दिस नोट लेट्स फर्स्ट look towards the difficult words that are there in your book, and some I have also just okay now just wait. See, number first difficult word is, this is a sentence and a half of a sentence in your poem, a star to strive hereby। ये वो स्टार है, एक नॉर्दर्न स्टार है, is a kind of sailor compass guiding the direction of the sea। That means ये वो आसमान का वो तारा है जिसे देख के सेलर अपनी डायरेक्शन को, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, उस डायरेक्शन को तय करने की कोशिश करता है। ओके, व्हील्स किक, सडन टर्न बैक टू द शिप्स स्टीयरिंग व्हील्स। ओके, दैट मीन्स कि अचानक से शिप की तरफ वापस चला जाना, सडन टर्न बैक टू द शिप स्टीयरिंग व्हील। ठीक है, दैट मीन्स कि जो शिप की व्हील्स हैं, जब वो अचानक वापस
समुद्र की लहरों से के साथ टच करके रिवर्स चलना शुरू कर देती हैं। ओके, दैट मे नॉट बी डिनाइड। डिनाइड मीन्स जब हम किसी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते या मना नहीं कर सकते तो उसे डिनाइड बोला जाता है। दिस इज इन योर बुक, यू कैन सी इन योर बुक। डिनाइड, दैट मीन्स इट इज so strong and complaining that it has to be obeyed. Compelling, that means किसी चीज को जबरदस्ती मनवाना। वो समुंदर की लहरें जबरदस्ती उसे अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ, पॉइंट को, और वो उनकी उन पुकार को मना नहीं कर सकता था। वो इतनी अट्रैक्टिव थी कि उसे उसकी तरफ जाना ही पड़ा। ओके, next is foam. Okay, it is foam or fourth. ये वो चीज है जैसे कोई पानी में या लहरों में फोम, जब लहरें, समुंदर की लहरें जब रेत के साथ टकराती हैं तो एक फोमी सा, एक फोम, जैसे नहाने के टाइम सोप से फोम निकलता है ना, तो वो फोम सा छोड़ जाती हैं। ये उसका वही मीनिंग है। ओके, दिस इज वैग्रेंट। वैग्रेंट मीन्स वंडरिंग, ट्रैवलिंग। दैट मीन्स कि जो घूमता रहा हो और जो समुंदर की लहरों के साथ साथ चलता रहे, उसे बोलते हैं। ठीक है, द गर्ल्स वे एंड द वेल्स वे, ये दोनों ही फिशेस हैं, क्रिएचर्स हैं सी में जो रहती हैं। ठीक है, और उसके बाद है विहड। वेट वेटेड मीन्स शार्पन, तेज, जो बहुत तेज हो। ओके, जो बहुत तेज हो। Okay, my dear child, and these are all the difficult meanings in your book that you can read. This is actually the कुछ portion ही इसका poem का निकाल के उसके आगे meaning दिया गया है कि इस portion का क्या meaning है। Okay, and some are with me. Mist, यहाँ पे एक mist लिखा गया है। Mist means cloud of tiny droplets. जो cloud tiny droplets के हैं उसे mist बोला जाता है। Okay. Now I'm going to read the poem and you will write it. I must go down to the sea again, to the lonely sea, the sky, and all I ask is a tall ship and a star to stream hereby, and the wheels kick and the wind's song and the white sails shaking and a grey mist here. Mist means cloud of tiny droplets. Okay, cloud of tiny droplets, जिसे आप tiny बोलते हो, clouds of tiny droplets. You can write, I must go down to the sea again, for the call of the running tide is a wide call and a clear call that may not be denied. Denied means मैं उसे मना नहीं कर सकता हूँ. And I ask, is a windy day with the white clouds flying, and the flung means throw forcefully, spray. Flung means throw forcefully. आप लिख लो पेंसिल से, इसलिए मैं रीड कर रही हूँ इसको. And the flung spray and the blown spume and the seagulls crying. Seagulls समुद्र की creatures हैं. I must go down to the sea again, to the vibrant gypsy life. Vagrant means wandering, traveling. Gypsy means free-spirited person. That means वो traveler जिसकी रोम में सिर्फ traveling बसी है और वो उस adventure को enjoy कर रहा है. Okay? Vagrant gypsy life. To the gulls wave and the waves way, where the winds like a to the girls way and the whales way. Girls wave and waves way जो है यहाँ पे लिखा गया है, ये मैं भूल गई थी फिर से बोलना आपको. यहाँ पे लिखा गया है both the girls and the whale are the creature of the sea. ये
सी के क्रिएचर्स हैं। Where the winds like a withered knife. Wet means बहुत ही तेज, wetted है ये. Wetted means बहुत ही sharpened knife. Okay, and all I ask is a merry yarn from a laughing fellow rivers. Rivers, okay, and a quiet sleep and a sweet dreams when the long tricks over. Okay, tricks over means to make someone believe that something is not true. ठीक है, तो ये इन सब के डिफिकल्ट मीनिंग्स हैं जो आप लिख सकते हो. आई एम डिस्प्लेइंग इट एंड नाउ आई एम मूविंग बैक to you, my dear children, and now I will ask, just wait, last time जिसे चांस नहीं मिला था, don't take it by heart, किसी किसी को नहीं मिलता है. जपनीत, ओके, रूहानी वर्मा, Rupriya, you have read last time. Ma'am, Yes, Ruhani, start. बस अब ज्यादा हैंड I रेज नहीं करना. must. Okay, ma'am. Start. I must go down to the seas again, to the lonely seas and the sky, and all I ask is a tall ship and a star to the steer hereby. And Okay. the wheel kick and the wind song and the white sail shaking and a grey mist on the sea face and the grey down breaking. Okay, thank you. This is, I must go down to the sea again, to the lonely sea and the sky. ये सेलर बोल रहा है कि मुझे सी में सेल करने के लिए वापस जाना चाहिए क्योंकि सी अकेला है और वो आसमान जो जहाँ पे हम देख देख के अपनी सीख को फर्दर करते हैं वो भी अकेली है. सी समुंदर भी अकेला है और वो आसमान भी अकेला है, तो मुझे जाना चाहिए सेल करने के लिए. एंड आल आई आस्क इज अ टॉल शिप. मुझे क्या चाहिए? एक लंबी सी कश्ती और एक वो चमकता हुआ तारा जो हमें दिशा दिखाता है कि हमें किस ओर जाना है. एंड द व्हील्स किक एंड द विंड सॉन्ग एंड द वाइट सेल शेकिंग. और मुझे कुछ नहीं चाहिए. एक छोटी सी एक लंबी सी कश्ती चाहिए, एक तारा चाहिए और एक व्हील किक्स मींस सडन टर्निंग बैक ऑफ अ शिप स्टीविंग व्हील. दैट मींस कि वो लहरें चाहिए जो समुंदर की व्हील जो कश्ती की व्हील्स को आगे और पीछे करें. और क्या चाहिए? एक हवा का विंड सॉन्ग मींस और हवा चाहिए. वो हवा जो मेरी कश्ती को आगे ले जाने में मदद करे. और वाइट सेल्स शेकिंग. वाइट सेल्स क्यों बोला गया है? जो कश्ती के ऊपर वो कटन लगा होता है उसको रेफर किया गया है कि वो जब लहराता है समुंदर की टाइड से और हवाओं से, तो वो लहराते हुए आगे आगे बढ़ता जाएगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए. मैं फिर रिपीट कर रही हूँ. यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है कि मुझे क्या चाहिए. मुझे लगता है कि मुझे सी में फिर से सेल करने जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि सी अकेला है और वो आसमान भी जिसमें मैं अपनी कश्ती ले जाके सेल करता था. और मुझे कुछ नहीं चाहिए. क्या चाहिए मुझे? एक बड़ी सी लंबी सी कश्ती चाहिए, एक स्टार चाहिए जो मुझे डायरेक्शन दिखाए सेल करते हुए. और क्या चाहिए? और लहरों का साथ चाहिए ताकि मेरे कश्ती की जो पहिए हैं, कश्ती के पहिए नहीं होते हैं, ये जस्ट एक इमेजिनेशन है, जो कश्ती मेरी आगे पीछे कर सके. ओके, तो आगे पीछे कर सके और उसके साथ साथ हवाओं का सही रुख चाहिए. विंड सॉन्ग्स मीन्स हवाओं का सही रुख चाहिए क्योंकि ये चीजें सेल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. स्लो टाइड्स एंड विंड डायरेक्शन. बहुत अगर स्टॉर्म होगी तो हाई टाइड्स होंगे तो शिप को डूबने के चांसेस होते हैं. तो वो ये चाहता है कि मुझे वही चीज चाहिए. जस्ट वेट, मुझे वही चीज चाहिए जो मेरे कश्ती को तैरने के लिए, लहराने के लिए मदद कर सके. हाँ जी, बोलो बेटा. Ma'am, what is the meaning of sailor compass?
बेटा वो एक कंपास होता है, सेलर कंपास। दैट मीन्स कि जब सेलर सेल करता है तो वो कंपास उसे दिखाता है कि अब आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। ये कंपास हर एक, जैसे हेलीकॉप्टर होते हैं या एरोप्लेन होते हैं, उसमें भी होता है, ठीक है। एक किस्म का उसमें वो उसको डायरेक्शन दिखाता है कि इस छोर से इस एंड से उस एंड तक जाने के लिए कौन सी डायरेक्शन में आपको जाना है। ओके ओके ओके, थैंक यू माय डियर चाइल्ड, थैंक यू सो मच। Welcome, ma'am. Okay, now next Ma'am, can is, I mute myself? yes, you can mute yourself, my dear child. Okay, Anya Sharma, you can now speak. Yes, Anya. Yes, ma'am. I Okay. must go down to the seas again, for the call of the running tide is a wild call and a clear call that may not be denied. And all I ask is a windy day with white clouds flying, and the flung spray and the blown spume and the seagulls crying. Okay, very good. Here, now the poet say, I must go down to the sea again. फिर से वही लाइन्स हैं कि मुझे समुद्र में चले ही जाना चाहिए। ये बार-बार लाइन्स इसलिए रिपीट हो रही हैं कि वो बता रहा है कि किस इंटेंसिटी से उसे लग रहा है कि समुद्र उसे पुकार रहा है और कितने लगाव है उसे अपनी सेलिंग से और सी से। इसलिए ये बार-बार लाइन्स रिपीट हो रही हैं। I must go down to the sea again for the call of running tide. क्यों? क्योंकि मुझे लहराती हुई लहरें समुंदर की पुकार रही हैं। Is is a wild is a wild call and a clear call that may not be denied. मैं उनकी इस आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। जैसे हमें कभी दादू बुलाते हैं, दादी बुलाते हैं, तो मम्मा आपको सबसे पहले बोलेंगी कि जाओ देखो दादू क्या बोल रहे हैं, दादी क्या बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े हैं, हमें उनसे प्यार है, तो हम उनकी पहली ही आवाज़ पे एकदम चले जाते हैं। यस मम्मा या यस दादू या यस दादी आपने क्या बोला? ऐसे ही स्पीकर को, पोएट को बहुत प्यार था। अब समुंदर की लहरों के साथ प्यार भी था और रिस्पेक्ट भी थी, और वो इसलिए कह रहा है कि उन टाइड्स की, उन लहरों की, उस अकेले सी की पुकार को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये मुझे अपनी तरफ खींच रही हैं, ये बार-बार मुझे बुला रही हैं। एंड ऑल आई आस्क इज़ दैट, मुझे क्या चाहिए? एक विंडी डे चाहिए, हल्की-हल्की हवा चल रही हो क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, आपको मैंने कहा भी, एंड द व्हाइट क्लाउड्स फ्लाइंग, जो सेल के लिए हेल्पफुल होते हैं, वो चीज़ें मुझे चाहिए। फ्लंग्स, स्प्रे एंड ब्लोन स्पर्म दैट द सी गल्फ्स क्राइंग, ये चीज़ें मुझे चाहिए। एक एक मुझे चाहिए हल्का-सी हवाएँ, उसके साथ जो लहरें हैं, अब यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में लहरों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि लहरें कैसी चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ में वहाँ पे बोला हुआ है पोएट ने कि मुझे टाइड्स चाहिए, बट यहाँ पे बताया गया कि मुझे कैसी टाइड्स चाहिए। मुझे टाइड्स चाहिए जो मुझे फ़ोर्सफुली, जिनकी जो स्प्रे हो, मतलब इन द सेंस कि जिनकी उछाल जो हो, ओके? जिनका फ्लो जो हो, ऐसा हो कि जब वो चलें तो वो मेरी कश्ती को खींचें। फ्लंग मीन्स थ्रोन फ़ोर्सफुली। मैंने आपको बताया फ्लंग का क्या मतलब है। तो मेरी कश्ती को वो खींचें और वो क्या करें, और उसके बाद और वो फ़ोम्स चाहिए। वो लहरें जब इसके साथ जब वो उतनी लहरें चाहिए कि वो समुंदर की एंड पे जाके हल्का-सा छू के वापस आएँ और छोटी-छोटी फ़ोम्स क्रिएट करें। और मुझे और मैं क्या सुनना चाहता हूँ, और सी में जो एनिमल्स रहते हैं, उनकी आवाज़ें। दैट मीन्स कि उसे हर एक चीज़ से, समुंदर से जुड़ी हर एक चीज़ से प्यार है। चाहे वो लहरें हों, चाहे वो फ़ोम हो, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो अकेला समुंदर हो, चाहे वो विंड हो जो सेल्स में हेल्प करती है। तो कहते हैं कि बस मुझे यही चाहिए, और ये सब कुछ वहाँ पे है, तो मुझे समुंदर पुकार रहा है, काश मैं सेल करने जा सकता। हो सकता है कि वो छुट्टी आया हो घर पे, तो इसलिए वो पोएम लिख रहा हो। ऐसा कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं दी है, बट मुझे इस पोएम से ऐसे ही लग रहा है। ओके, थैंक यू आनिया। थैंक यू माय डियर चाइल्ड। ओके, अवरीन, बेटा जो मुझे पहले मिल रहा है मैं उसी को अनम्यूट कर रही हूँ। डोंट टेक इट पर्सनली, आई लव एवरीवन। यस अवरीन, अवरीन, आई हैव अनम्यूटेड यू।
You're not getting unmuted, my dear child. Okay. Yes, you have got now. Okay, just read. I must go down. Last paragraph. Avreen, I'm audible? Yes, ma'am. Okay, dear. Continue. I must go down to the sea again, to the vagrant gypsy life, to the Gypsy. girl's way and the whale's way, gypsy life, to the girl's way and the whale's way, where the wind's like a whetted knife, and all I ask is a merry yarn from a laughing fellow rover, and quiet sleep and a sweet dream when the long trick's over. Okay. तो अब लास्ट पैराग्राफ में वो क्या मिलता है? आई मस्ट गो डाउन टू द सी अगेन, द वैग्रेंट जिप्सी लाइफ। दैट मीन्स कि मैं फिर दोबारा से यहाँ पे लिखा गया है कि मैं जाऊं समुंदर के पास और अपनी वो लाइफ जी लो। कौन सी लाइफ? जो फुल ऑफ एडवेंचर है। ओके, जो सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए बनी है, जो फ्री फ्रॉम एनी स्ट्रेस एंड बर्डन्स है, फिर से वो लाइफ जी लूं और वहां जाऊं जहां पे मुझे समुंदर के क्रीचर्स भी पुकार रहे हैं। गर्ल्स वे एंड द वेव्स वे, टू द गर्ल्स वे एंड द वेव्स वे, ये दोनों ही समुंदर के क्रीचर्स एंड समुंदर में रहते हैं। मैं वहां जाऊं जहां मुझे समुंदर के क्रीचर्स पुकार रहे हैं अपनी, आपके वर्ड में बोलती हूँ, अपनी बिंदास जिंदगी जीने के लिए। ओके, और जहाँ पे विंड जो है वो एक तेज धार की तरह चलती है। वो तेज धार नहीं जो नुकसान पहुंचाती है, बस जो दिल को छूती है। ठीक है, ठीक है। हर एक पॉइंट का जो रिटन पार्ट होता है ना, वो हमेशा उसके पोएम के रिलेटेड बोलना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर विदर्ड का हम मीनिंग समझेंगे वो है शार्पन्ड, और अगर नाइफ लिखा है तो हम बोलेंगे शार्पन्ड नाइफ मीन्स खंजर, बहुत जो नुकसान पहुंचा सकता है। बट यहाँ पे इसका ये मीनिंग है कि वैसी हवाएं जो दिल को छू के चीर के जाती हैं अंदर से। कभी कभी हम जब बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छा मौसम होता है, ऐसा लगता है जैसे पूरा नेचर जो है हमारे हमें समा गया, बस वैसे ही पॉइंट फील कर रहा है। मैं वहां जाना चाहता हूँ। एंड ऑल आई आस्क इज अ मैरी यार्न फ्रॉम ए लाफिंग फेलो रोवर्स एंड क्वाइट स्लीप एंड अ स्वीट ड्रीम व्हेन द लॉन्ग ट्रिक इज ओवर। अभी मैं क्या चाहता हूँ, इसलिए इससे मुझे गेस किया कि ये शायद समुद्र पे नहीं है। मुझे क्या चाहिए? एक अच्छी सी झपकी वाली नींद चाहिए, और मैं बस इसी ख्वाब ख्यालों में खो जाना चाहता हूँ, इससे पहले कि कोई मुझे आके जगाए और बोले कि जो आप सोच रहे हो वो वैसा नहीं है, आप समुंदर में सेल नहीं कर रहे हो, आप कहीं और हो। इससे पहले कि कोई आके मुझे जगाए इस सुंदर से सपने से, मैं बस इसी सपने में खो जाना चाहता हूँ, सो जाना चाहता हूँ। ओके, दिस इज ऑल अबाउट your poem. I hope that you have understood. I'm trying my level best कि आपको एक एक चीज समझ आए, but I Thank you, hope ma'am. कि अगर कहीं पे भी problem हो, you are most welcome. You can WhatsApp me before 5 o'clock. You can call me. And जब भी रिवीजन में कहीं भी कोई समझ ना आए, आप मुझे पूछ सकते हो, 10 times पूछ सकते हो, but at this time I want 100% paper. Okay, don't who have not got the chance for the reading, they will get it next time. Kindly keep your hands down. If you have any questions, you can raise your hands. Okay, rest of you kindly keep your hands down. Thank you. Thank you. I'm really very happy that you all immediately obey my order. Yes, Supriya, my dear child, you can ask your question. हाँ सुप्रिया बच्चे बोलो। Ma'am, the paragraph which you have just now explained, ma'am, please again explain it. Okay, यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है कि he is saying that I want to live that life, the life that is free from all responsibilities, a life of a traveler, a life of a adventurous person. और मुझे ये सब जीने के लिए समुंदर में जाना ही जाना है, क्योंकि वो मेरे को पुकार रहा है। और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? जहाँ पे मुझे समुंदर की क्रिएचर्स की आवाज सुनाई दे। और जो विंड है, वो विंड ऐसी है कि जो चीरती हुई मेरे दिल को छू जाती है। यहाँ पे लिखा है विदर्ड नाइफ, विद शार्पन नाइफ, बट वो नाइफ जो नुकसान ना पहुंचाती हो। यहाँ पे विंड को कंपेयर किया गया है एक
तेज धार खंजर की तरह, बट इन अ पॉजिटिव मैनर, कि वो इतना टचिंग है कि जब वो विंड मेरे स्किन को टच करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक खंजर, एक प्यारा सा खंजर मेरे अंदर मेरी रूह को छू रहा है और बार बार मुझे पुकार रहा है, मैं वहां जाना चाहता हूँ। आई मस्ट गो डाउन टू द सी अगेन, ये बार बार लिखा गया है, मैं वहां जाना चाहता हूँ। और उसके बाद ये लास्ट 2 लाइंस जो हैं वो ये है कि ये सपना बस एक सपना ही रहे और मुझे एक सुंदर सी नींद आ जाए और मुझे कोई आके ये जगाए ना और ये बोले ना कि आप सिर्फ सपना देख रहे हो। मुझे लगता है जो सेलर है वो घर आया हुआ है और उसे अपने सेलिंग की, अपने शिप की याद आ रही है और ये पोएम लिख रहा है। ओके, क्लियर? Yes, Clear? ma'am. ओके डियर, Yes, ma'am. ओके डियर। अद्विता, 23 messages. You are so much free. You don't concentrate. You just tap the messages only. Yes, dear. You can ask if you want to say something. I've unmuted you. Be quick. Yes, ma'am. Ma'am, good afternoon, ma'am. Ma'am, Afternoon. my question is, ma'am, what is the meaning of Gypsy? बेटा अभी मैंने Gypsy आप गिप्सी लाइफ मीन्स वो गिप्सी मीन्स फ्री स्पिरिटेड पर्सन, दैट मीन्स ट्रैवलिंग और स्पिरिटेड इन द सेंस वो पर्सन जो सिर्फ ट्रैवल करना चाहता हो। गिप्सी लाइफ मीन्स बिना किसी Traveling. रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बिंदास जिंदगी। ओके Okay. Yes, ma'am. And ma'am, the poet was dreaming. यस, ही वाज नॉट ड्रीमिंग, ही वाज जस्ट थिंकिंग। और वो ये सोचता था, लास्ट में बोल रहा है कि सोचते सोचते काश मुझे नींद आ जाए इससे पहले कि कोई मुझे जगाए और बोले कि आप तो सपना देख रहे हो। ठीक है, Okay, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम वेलकम वेलकम। ओके, if you don't get a chance to ask question you can message me also because time is running and we have to leave. Yes beta, you can ask your question. Ma'am, I cannot understand first paragraph, third line. थर्ड लाइन, हाँ तो ओके, वो ये चाहता है कि जो वो पॉइंट बोल रहा है कि मुझे क्या चाहिए सी के पास जाने के लिए, सेल करने के लिए मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, एक लंबी सी शिप चाहिए और एक स्टार चाहिए जो डायरेक्शन दिखाता है सेल के टाइम। और व्हील्स, और लिखा है व्हील्स किक, व्हील किक्स इन द सेंस जो लहरें हैं, जो समुद्र की लहरें इसको शिप को आगे आगे ले जाती हैं, वैसी लहरें चाहिए कि वो मेरी शिप को आगे आगे ले जाने में हेल्प करें। ओके, एंड विंड सॉन्ग इन द सेंस, देखो बेटा जब भी सेल करते हैं ना तो एक विंड की डायरेक्शन और लहरों का चलना कंट्रोल में होना चाहिए। तो वो यही कह रहा है कि एक तो लहरें वैसी चाहिए और विंड वैसी चाहिए जो मेरी शिप को आगे आगे समुंदर में आगे आगे बढ़ने में मदद करें। तो वो ये कह रहा है। एंड ए ग्रे मिस्ट मीन्स कि क्लाउड ऑफ टिनी ड्रॉपलेट, दैट मीन्स वो क्या चाहिए मुझे? कुछ नहीं चाहिए, एक छोटा सी मिस्ट चाहिए जो बार बार सी को छुए, और एक डान चाहिए। ओके, डस्क एंड डान, एक सुनहरी सुबह चाहिए। दैट मीन्स वो ये कहने की कोशिश कर रहा है जो समुंदर मुझे पुकार रहा है उसके पास ये सब कुछ है, बस